This Q&A session 1 के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं related to my personal life also. Love someone? Tell us your journey from zero to this. Yes, ये मेरा first source of income था. I was never a burden on my parents. Like I'm still struggling for my career. What do you do when you feel low? Lazy whenever I feel like not getting up from my bed. ये मैंने सीखा है with time. एक 2-3 years back मेरे को बहुत कैमरा फियर था. मैं ऐसे बैठ के बात भी नहीं कर सकती थी. मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ. I believe that it's very much important to talk. Where do I see myself in next 5 years? That's a big goal for me. Yo! बहुत queries आई थी regarding my editing skills. I wholeheartedly want to say that love you. Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Sonali and I create content related to fashion, lifestyle and vlogging. But today's video will be going to be a fun Q&A round, and I believe that I know it's too early to plan a Q&A on my YouTube channel because I've just started my YouTube journey, but I believe that I want to connect with my audience more, like rather than just creating the content. I want to talk, I want to connect with you all, so that is why I've planned this Q&A session 1 on my YouTube channel. Although I haven't received much of the queries on my Instagram, mostly all of them are related to my editing skills, mostly the collaboration ones, and I'll try to answer all of them in this series. Okay, so let's jump to our first question, which is from Abhay Tiwari. What was the first thing you did for earning? Tell us your journey from zero to this. Okay, so hi Abhi, thank you for putting up this question. And मैं बताती हूँ, मैंने अपने स्कूल टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव किड रही हूँ. लाइक मुझे प्रोजेक्ट्स बनाना, DIY गिफ्टिंग्स, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी. तो मैं क्या करती थी, लाइक अगर आप मेरा YouTube स्क्रॉल डाउन करोगे, अब तो मैंने शायद आर्काइव कर दी है अपनी पोस्ट, बट मैं समर हॉलीडे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना मैंने शुरू किया था फ्रॉम द स्टैंडर्ड 6th या 7th से. मैं समर हॉलीडे प्रोजेक्ट्स बनाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये चीज़ बनाना, एंड वो मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम था. आई स्टिल रिमेंबर जब भी मैं किसी स्टेशनरी शॉप्स पे जाती थी ना, मैंने अपना एक ऑनेस्टली सेइंग एक कार्ड बना रखा था, उसमें मैंने अपनी मॉम का नंबर डाल रखा था. एंड मैं जब भी किसी शॉप पे जाती थी स्टेशनरी की, मैं उनको बोल देती थी कि मैं ना समर हॉलीडे प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, आपके पास इतने बच्चे आते हैं, अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो, किसी को चार्ट्स बनवाने हो, किसी को कोई वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल जो वर्किंग मॉडल्स होते हैं, किसी को कुछ बनवाना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. मेरी मम्मी का नंबर है, आप मुझे कॉल कर देना, मैं यहाँ पे रहती हूँ एंड मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाती हूँ. तो येस, ये मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम था. आई वॉज नेवर अ बर्डन ऑन माई पेरेंट्स. मतलब मैं कभी भी, आई नो, मैं उन पर कभी भी बर्डन नहीं रही हूँ. शुरू से ही मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट किड थी. बट जो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है, दैट what was the journey from zero to this, so इसके रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता है, मैं ना ऐसे सोचती थी मतलब मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो 6th क्लास से अर्न कर रही हूँ, बट लेटली आई रियलाइज दैट सेल्फ इंडिपेंडेंट होना एंड अपने करियर में सेटल होना आर टू डिफरेंट थिंग्स. एंड आई बिलीव दैट वी ऑल आर इन द सेम बोट. लाइक आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर माई करियर, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट दैट व्हाट्स बेस्ट फॉर मी, what's not best for me. So I think we all are in the same boat, and I'm just trying to explore more and more things, whichever works out best for me, I will be choosing that as my career. So yeah, that's my journey from zero to this. Like अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ों में involved हूँ. Like I'm into brand promotions, I'm into graphic designing, I'm into management as well. So मैं ये सारी चीज़ों को balance करके I'm just living a life. But एक चीज़ है जो सच है, मैंने with the time अपने आप को बहुत grow किया है. I believe that, and I am not gonna stop now. So moving to the next query, which is from Ishika. Ishika is my junior. Okay, what motivates you to work hard? Okay, thank you for putting up this, Ishika. So what motivates me to work hard? Okay, so I have read it somewhere that the fear of being unsuccessful is bigger than the fear of not trying something. And honestly, this hits me hard. Like whenever I feel lazy, whenever I feel like not getting up from my bed, this is the one thing that hits me hard. मतलब अगर आप सोचोगे कि यार नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, दैट इज़ द बिगेस्ट फियर. यू नो, आप 36 चीज़ें ट्राई कर लो, बट जिसमें आपका मन लगे ना, उसको ऐसे पकड़ के रख लो कि येस, दिस इज़ माई पैशन एंड आई वांट टू डू दिस. बट ट्राई ही नहीं करना, सोचते रहना नहीं होगा नहीं होगा, इज़ द बिगेस्ट फियर. ये मैंने सीखा है विद टाइम. एंड आई हैव सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गोल्स एंड ड्रीम्स फॉर माई पेरेंट्स. So yes, that is my biggest motivation to work hard. Okay, so moving to the next, Naveen says that don't have any questions, just wanna say that you are cute. बहुत तेज हो रहा है. Thank you, Naveen.
No, I'm not blushing. Okay. Moving to the next question is from Foodie Dad. Sumit says that 1M subscribers कब होंगे? आई थिंक जब मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करूँगी मे बी देन, बिकॉज नथिंग कम्स ईजी, यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन दैट. So jumping to the next question is from Simran Goyal. What do you think you have earned so far in life? Thank you, Simran, for putting up this question. And I genuinely believe that on an open platform, I wholeheartedly want to say that मैंने अपनी लाइफ में दोस्त कमाया. मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त कमाया. दिस इज़ द वन थिंग विच आई हैव अर्न सो फार इन लाइफ. हाँ, वो बात अलग है कि मैंने फिर भी अपना बर्थडे सोलो सेलिब्रेट किया था इस साल. उसका भी कुछ एक अलग पर्सनल रीज़न है, दैट इज़ विच इज़ फाइन. एंड सेकेंड थिंग विच आई थिंक आई हैव अर्न सो फार इन लाइफ इज़ दैट I accepted myself the way I am. Like I accepted, you know, ये चीज़ें बहुत ऐसे बुकिश लगती है, but you know when you start accepting your thing, when you start accepting your flaws, जब आप अपने पे वर्क करना शुरू कर लेते हो ना, जब आप अपने को एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई मैं तो कैमरे में ऐसे दिखती हूँ एंड ठीक है मैं बोल रही हूँ वो क्रिंज लग रहा होएगा, बट नहीं, दिस इज़ मी. सो आई थिंक मैंने अपने लिए वो सेल्फ लव, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट अर्न किया है. लाइक इफ़ आई लुक बैक लाइक 2-3 years बैक, दिस इज़ नॉट द सेम मी. लाइक आई हैव चेंज्ड अ लॉट. मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मेरे को बहुत कैमरा फियर था, मैं ऐसे बैठ के बात भी नहीं कर सकती थी. सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच आई हैव अर्न सो फार इन लाइफ. आई हैव अर्न सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट फॉर माई सेल्फ. या ओके, सो आई बिलीव दैट अच्छा खासा Q&A चल रहा है एंड आप भी इतनी दूर देखते देखते आ ही गए होंगे. इफ़ यू वॉन्ट टू नो मी मोर तो आपने इतना अभी तक देखा ही होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आकांक्षा. डिड यू एवर फॉल इन लव? Yes. Okay, so moving ahead and taking this query from Sanya. Influencer who inspires you in real life? नो एज सच कोई है नहीं पर्टिकुलर फिक्स्ड, बट आई लिसन टू लिज अ लॉट एंड शी इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मी. मैं उनको बहुत सुनती हूँ. हर इंस्टाग्राम एंड हर यूट्यूब इज़ दैट विजार्ड लिज करके. नेक्स्ट अप इज़ फ्रॉम दिव्यांशा. अबाउट योर फेवरेट क्यूजन एंड फेवरेट कैफे रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली? Well, it is not just one. Chinese and Italian both are my favorite cuisines. And coming to the cafe restaurants in Delhi, ऐसे कुछ मेरा पर्टिकुलर फेवरेट है नहीं. कुछ भी जो एस्थेटिकली प्लेजेंट प्लेसेस होती हैं वो मेरी फेवरेट बन जाती हैं. सो येस, एनीथिंग दैट हैज़ दिस यूनिक कॉन्सेप्ट या एस्थेटिक वाइब्स अट्रैक्ट्स मी द मोस्ट. एज सिंपल एज दैट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर अपूर्व झा. Which mic do you use and where do you see yourself in next 5 years? Thank you, Apurv sir, for putting up this question. And as you all know that I've just started my YouTube journey few months back, so I don't use any particular mic or camera to record my videos. I just use iPhone 11, basic iPhone 11, no Pro, nothing, just basic iPhone 11 to record my YouTube video. And your next query was, where do I see myself in next 5 years? Okay, so I want to be more bold, confident and successful. I have some dreams, I have some goals in my mind. Like I really wanted to apply in few of the things. I have some commercials and advertisements in my mind. And I see myself as an independent chick in next 5 years. That's a big goal for me. Yo! Okay, so moving to the next question is from Riya Mehta. And that one advice you want to give to your younger self? Thank you, Riya, for putting up this question. And I believe that one advice I want to give to younger Sonali is that stop doubting yourself, stop underestimating yourself. There's a long way you want to go, there's a long path you want to make, there's a lot which I am capable of doing. It's just that I want to explore more and more. And I don't know, you might feel this a bit awkward, but my mom always used to say this, that हनुमान जी को उनके बल का पता नहीं था,
बट वेन ही गॉट टू नो अबाउट दैट कि वो कितने पावरफुल हैं, उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑन द अर्थ, ही वेन ही गॉट टू नो अबाउट हिज स्किल्स, हिज पावर्स. सो शी ऑलवेज यूज टू टॉट मी दिस थिंग दैट तुझे अपनी चीज़ों का पता नहीं है, तू किन किन चीज़ों में अच्छी है, यू डोंट नो योर स्किल्स. सो दिस इज़ द वन थिंग विच आई वांट से टू माई यंगर सोनाली इज दैट कि कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एंड अभी भी तुम बहुत दूर आए हो, आगे भी तुम्हें बहुत दूर जाना है. सो या दैट इज ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सोनाक्षी. आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर स्किन केयर रूटीन. ओके, सो फ्रॉम द पास्ट 2 years आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, बट अभी भी एज सच कुछ फिक्स स्किन केयर रूटीन नहीं है मेरा. आई यूज टू डू स्क्रब twice a week, and in the daytime I apply sunscreen and serum, day serum, and in the night time always, like अगर मैं दिन का भी भूल जाऊँ ना, बट मैं नाइट स्किन केयर रूटीन अपना कभी नहीं भूलती. I always apply a tea tree oil at night with some good moisturizing. So yes, that is my skin care routine as of now. Moving to the next question, which is from Pankhudi Agarwal. You are indeed an inspiration to many youngsters. Wanna ask, what do you do when you feel low? Am I an inspiration to many youngsters? जय हिंद दोस्तों. Okay, so ups and downs are a part of life, but when it comes to me, a person like me who's an emotional wreck, yes, sometimes it gets difficult to handle certain situations बिकॉज मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ. सो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन से डील करना. बट वॉट आई डू इज़ आई राइट, आई ड्रॉ, आई अफर्म थिंग्स. लाइक मेरी एक डायरी है, मैं उस पर राइट करती हूँ, अफर्म करती हूँ चीज़ें, मैनिफेस्ट करती हूँ, एंड आई ट्राई एंड पुश माई सेल्फ टू टेक न्यू चैलेंजेस. अपने आप को पुश करती हूँ बिल्कुल कि मतलब नहीं, आई वांट टू डू दिस, उठो, इस फेज़ में नहीं रहना, आगे बढ़ो, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट जब सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड मुझे लगता है नो, इट्स गेटिंग हैवी इन माई चेस्ट, इट्स गेटिंग अ पेन इन माई चेस्ट, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे से नई सिचुएशन हैंडल हो रही, देन आई रीच आउट टू अ फ्रेंड. And I believe that it's very 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 much important to talk. Like अगर आप किसी चीज़ में हो, सबका अपना अपना तरीका होता है टू डील विद सिचुएशंस. कुछ लोग अपना खुद ही हैंडल कर लेते हैं चीज़ें, बट आई बिलीव दैट सबका अपना अपना तरीका होता है चीज़ें हैंडल करने का. बट व्हेन इट गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, आई रीच आउट टू अ फ्रेंड. या एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Nandini. I want to know about the collab things. Do they collab with curvy girls too? Okay, yes Nandini, of course they will. Like collaboration, promotional, branding industry is so big and इसमें हर तरह के हर टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है. What matters it आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो. लाइक अगर ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी तो वो चीज़ आपके लिए बनी होगी. इट्स जस्ट दैट आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा अपना. लाइक यू जस्ट हैव टू क्लिक सम ऑफ द पिक्चर्स, यू जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन फ्यू ऑफ द कैंपेन्स. एंड अगर आपको फैशन लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में अप्लाई करना है, यू हैव टू लुक फॉर रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे प्लस साइज मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है. एंड दिस इंडस्ट्री इज सो बिग, लाइक यू कैन सर्च फॉर पर्टिकुलर हैशटैग्स एंड वहाँ से आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें. बट बिफोर दैट आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा. लाइक आपकी प्रोफाइल देख के ना तुरंत वो चीज़ पता चल जानी चाहिए दैट you want to be in this field and you want to apply in this background. So yeah, that plays a very major role in applying for these things. Okay, so I guess वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट जो मेन चीज़ें थी, लाइक मेरे को बहुत क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग माई एडिटिंग स्किल्स and regarding the collaborations with brand. Firstly, thank you each one of you for complimenting my editing skills, for complimenting my vlogs. जितनी भी मैं editing करती हूँ ना, all from my phone. Like एक सॉफ्टवेयर है VN and InShot, मैं ये इन दोनों सॉफ्टवेयर से and PicsArt से मैं thumbnails क्रिएट करती हूँ. So yes, these are the 3 apps which I use to edit my YouTube videos. फ़ोन से edit करना ना बस सिंपल साउंड करता ही है, होता नहीं है ऑनेस्टली. इतनी सारी लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं यार. मतलब आप उसमें क्लिप्स भी एक्सपोर्ट करते हो, फिर इमेजेस भी ऐड करते हो, स्टिकर्स भी ऐड करती हूँ, मीम्स भी ऐड करती हूँ, साउंड्स भी ऐड करती हूँ, म्यूजिक भी ऐड करती हूँ, जो छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, वॉइस ओवर्स होते हैं, वो सब ऐड करके ना इतनी सारी लेयर बन जाती है ना एक वीडियो में, तो वो समटाइम्स बहुत इरिटेटिंग हो जाता है. बट कंट्रोल अगर कोई बहुत बड़ी वीडियो है और अगर मैं उसको एक पार्ट में एडिट नहीं कर पा रही, तो व्हाट आई डू इज़ मैं वीडियो को ना 5 पार्ट में डिवाइड करती हूँ. अब जैसे ये Q&A है, अगर इसमें 13 क्वेश्चंस है
तो मैं 5 क्वेश्चंस एक वीडियो में एडिट करूँगी, 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में एडिट करूँगी, उसको एक्सपोर्ट कर लूँगी, उसके बाद दोनों वीडियोस को ऐड करके कंप्यूटर से या फिर फ़ोन से दोनों को बस मर्ज करके वो एक पूरी बड़ी वीडियो बन जाती है. सो येस, दैट्स हाउ आई एडिट माई यूट्यूब वीडियोज़. एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोलैबोरेशंस की मेरे पे ब्रांड्स कैसे आए एंड मैंने अपनी कोलैबोरेशन जर्नी कैसे स्टार्ट करी, प्रमोशनल जर्नी कैसे स्टार्ट करी. सो ये सब बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं बताऊंगी इन सब के बारे में, बट मैं स्मॉल ग्लिम्स में आपको बता देती हूँ दैट लास्ट ईयर मैंने प्रोडक्ट कोलैबोरेशन से शुरू किया था. बट पहले आपको खुद ब्रांड्स को अप्रोच करना पड़ेगा. लाइक इंस्टाग्राम पे आपको ब्रांड्स को DM करना पड़ेगा फॉर द कोलैबोरेशन पर्पस. आप उनको मेल्स भी कर सकते हो. सो अब तो बहुत सारे मेल्स आते हैं मेरे पास ऐसे कोलैबोरेशन के लिए एंड बट शुरू में आपको खुद से ही अप्रोच करना पड़ता है. सो येस, मैंने भी खुद से अप्रोच किया था एंड आपको ना कुछ वर्क सैम्पल्स बनाने पड़ेंगे. लाइक मैंने अपने खुद के कुछ वर्क सैम्पल्स बनाए थे. सो येस, धीरे धीरे करके ऐसे मेरे पे अपने आप ब्रांड्स आते गए, प्रमोशनल चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होती चली गई. ओके, सो दिस Q&A सेशन पार्ट 1 वॉज सुपर फन फॉर मी. मज़ा आया मुझे आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने में एंड कुछ मंथ्स में हम ये करते रहेंगे. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन माई कॉमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है तो लव यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय.